शौर्या द लैडर पॉडकास्ट चैनल के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में 17 फरवरी 2024 को इंडियन आर्मी द्वारा योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड होलिस्टिक वेलनेस आयोजित किया गया था इंडियन आर्मी सोल्जर्स और उनके परिवारजनों के लिए। इस प्रोग्राम के क्लोजिंग सेरेमनी में सद्गुरु, जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर है, और लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, GOC-in-C सदर्न कमांड इंडियन आर्मी, मौजूद थे। इस क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान जब सद्गुरु जी पूरे क्राउड को एड्रेस कर रहे थे, एक बड़ा अनोखा सवाल इनसे पूछा गया। क्या इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ट्रांजिशनिंग के द्वारा जो सिविल एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, उस समय उनका तैयारी या प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? और इसके लिए उन्होंने बहुत ही मज़ेदार आंसर दिया। आज के इस एपिसोड में उसी आंसर और उनका जो व्यूज़ है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Maintaining one's poise and perhaps relevance. Well, if you spend 15-20 years in the army, you are in a certain type of situation where there is a certain order, there is a certain certainty about everything, what anybody says they must do. There are many things. In the world outside, it's not like that. They'll tell you something and they won't do it, they'll do something just the reverse. So you are not used to that. So you think it's a great challenge. This is the place where we all live every day, where nobody keeps their promises, nobody really does exactly what they say they will do many things and they keep changing their intentions, which people who have been in army may not be used to and it may be a bit shocking for them. दोस्तों, यहाँ पे सद्गुरु ये समझाना चाहते हैं, हम अगर आर्मी में या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में हैं, पहले तो हमें हमारा वर्किंग कल्चर और हमारे जो कैपेबिलिटीज़ है उनको भली भांति जानना चाहिए और उनके बारे में हमें पहचान होना ज़रूरी है। इसके बाद जब भी हम छुट्टी जाते हैं या गांव वगैरह घूमने जाते हैं अपने, तो वहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल पंचायत कह लो, सरकारी ऑफिस कह लो, उनका काम करने का तरीका, उनका रहने का तरीका, उनका जो कंडक्ट है, उससे भी हमें जानकार होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे सुनते हैं और क्या कहना चाहते हैं। So, I think it's important, which I've also worked with the US Veterans Organization. There also I put it, but they have all these psychological trainings and stuff. That's not what they need. I think there must be a period of transition for all soldiers and officers who are getting out of the services. That there must be at least 2-month, 3-month training which can be done by corporate houses, or our academy leadership academy can do that. Some kind of transition that they're suddenly not thrown into an uncertain place from being in a very orderly situation. Well, many of you may complain, even in the army it's not as orderly as you want it to be, but it's as orderly as life can be. Everywhere else it's one big mess. So learning to live in that mess and function in that mess and be successful in that mess will take a little different kind of approach. I know. सबसे अहम बात दोस्तों, सद्गुरु जी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए जो ट्रांजिशनिंग पीरियड है वो हमें तय करना चाहिए, और उस ट्रांजिशनिंग पीरियड में हमारे जो कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ हमें कुछ अपस्किलिंग की ज़रूरत है, उनके बारे में हमें और थोड़ा गौर देके अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए। और इन सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू हमें मिलिट्री एनवायरनमेंट से सिविल एनवायरनमेंट का जो चेंज होने वाला है, उसके लिए हम अपने आप को भली भांति तैयारी करें। Many officers who joined corporate sectors and they're doing wonderfully well, but maybe some will struggle a bit. I feel if there is a transition, voluntarily if people can go into it, those who need it, if they go into it and there's some kind of training for them to, it's like a fish which has been in a big aquarium, suddenly you're leaving it in the ocean, where it's all, everybody for himself.
kind of world, I think a little transition training would be wonderful. I don't think any country in the world has done that. I think we owe it to the forces, we should do that. इस मंच के द्वारा सद्गुरु जी जो प्राइवेट फर्म्स है उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर वो बड़े बड़े कंपनीज ये ऐसे ट्रांजिशनिंग पीरियड का एक ट्रेनिंग कैप्सूल या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे तो उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू सभी तमाम वेटरन्स जो सिविल ट्रांजिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और उनका जो ट्रांजिशनिंग फेज़ है वो बहुत ही आसानी से और बेहतर तरीके से हो सकता है, जिसका फ़ायदा बखूबी वापस उन्हीं आईटी कंपनीज़ को होगा जिनमें ये जॉब करेंगे आगे जाके। इसके अलावा हमें भी अपना खुद का तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तैयारी अपना रेज्यूम, अपना जॉब प्रोफाइल, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल और अपना जो फील्ड है जिसमें हमें जॉब करना है वो चुन के उसके बारे में और डिटेल सर्टिफिकेशंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन लेने के बारे में पूरा स्टडी, थोरो डिटेल में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा जो द लैडर पॉडकास्ट चैनल है हमेशा इस मकसद को अचीव करने के लिए कमिटेड है और हम अपने वीडियो के थ्रू इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जो स्क्रीन पे दिखाया गया लाइन है, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, ये बहुत ही सत्य और सरल है। जितना मेहनत हम अभी करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट हम बाद में पाएंगे। ऐसे अनेक ट्रांजिशनिंग एडवाइस, इंटरव्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकार लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।